ठीक है, आप देखोगे ढेर सारा इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। अ सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलेकोइड। क्लियर? ये देखो, और एक के ऊपर एक खूब सारे इस तरह से थाइलेकोइड अरेंज हो जाते हैं। You can see many grana are seen like this। ठीक है, एक coin like स्ट्रक्चर की बात करोगे, when we talk about the single coin like structure, this is called as a thylakoid। this is called as thylakoid। और इसी के अंदर यहां पे देखोगे इनर मेम्ब्रेन की तरफ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यहां पे तो when we talk about the chlorophyll pigment, तो chlorophyll pigment कहां पे होता है? थाइलेकोइड के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, थाइलेकोइड के अंदर होता है। The chlorophyll is found in the inner side of the thylakoid। ठीक है, a single coin like structure is called as thylakoid, and when these stick one above the other like the stacks। ठीक है, जैसे हम लोग अपना मनी बॉक्स फोड़ते हैं, गुल्लक फोड़ते हैं, उसमें से 5-5 के या 2-2 के सिक्के निकाल के एक के ऊपर एक रखते हैं, तो यू कंसीडर वन कॉइन एज अ थाइलेकोइड, एंड व्हेन वी अरेंज देम वन अबव द अदर, सो द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज द ग्रैनम। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द ग्रैनम। क्लियर? एक को बोलते हैं ग्रैनम, दिस इज द ग्रैनम। और इसी तरह से ढेर सारे ग्रैना आपको यहाँ पे दिखाएंगे। प्लूरल इज ग्रैना। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप देखो, न्यूमरस। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे पूरे क्लोरोप्लास्ट में पूरे बिखरे रहते हैं ग्रैना। ठीक है ना? व्हाट इज ग्रैनम? When many thylakoids stick one above the other, the structure which is formed is called as the granum। Then what is grana? The plural of the granum is called as the grana। ठीक है, इस तरह से आप देखो यहाँ पे खूब सारे बने हुए हैं। ठीक है, many granum are there। ठीक है, these structures are called as granum, और सबको मिला दोगे तो collectively they are called as the grana। ठीक है, and these remains attached through a structure called as stroma lamella of the thread। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डंडी जैसा स्ट्रक्चर, इसको लैमेलर स्ट्रक्चर जो होता है इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, these structures are called as stroma lamella or the thread। ठीक है, like this। And they are attached to each other also, like clear? So this is the structure of the chloroplast। This one is the stroma lamella। Stroma lamella, or another name is the thread। This is also known as the thread। This word is not written in your NCERT, but this can be asked in your competitive examination। This is called as the thread। NCERT में तो नहीं आपको मिलेगा, but in other book you can easily get it। So thread is nothing except the stroma lamella। Clear? And this lamella is of two types। अब देखोगे, ठीक है ना, बट ये डिटेल हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, स्टिक टू द एनसीईआरटी कंटेंट ओनली। ठीक है, सो आई टोल्ड यू अबाउट द थाइलेकोइड। ठीक है, दिस इज द यूनिट, यू कैन से द यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट।
सिंगल सर्कुलर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट की लोकेशन कहां पे एग्जैक्टली हुई? इनर साइड ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखोगे तो वहां पे ये होता है, ठीक है, दिस इज द क्लोरोफिल। And because of this chlorophyll pigment, the chloroplast impart the green color. And what is the exact function of the chlorophyll? The exact function of the chlorophyll is to absorb the sunlight for the purpose of photosynthesis. ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना है। What is the function of chlorophyll? अभिषेक, अभिषेक, give answer. Yes, sir. Yes, sir. Function of chlorophyll. So to absorb the sunlight, For what purpose? so to make the food. But simply use the word photosynthesis, for photosynthesis. Yes. Clear? Yes. Okay. What is granum? Any other can also try. कोई और बताओ, ग्रेनम क्या होता है? A bunch of thyroid. थाइलॉइड नहीं, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड। Thylakoid. A group of thylakoid. Group of thylakoid is called as what? ग्रेनम। Granum. और ग्रेनम का प्लूरल क्या हुआ? The Grana. grana. ग्रेना, करेक्ट, ग्रेना, ठीक है, याद रखना। एक ग्रेनम में मालूम है आपको कितने दिखेंगे थाइलेकॉइड्स? आपको दिखेंगे 6 से लेके 10 तक दिख सकते हैं, 6 to 10। सिंगल ग्रेनम कंटेन 6 to 10 थाइलेकॉइड्स, ठीक है। और क्या यूनिक चीज है? व्हाट इज अदर यूनिक थिंग अबाउट दिस क्लोरोप्लास्ट? इट हैज इट्स ओन डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए याद रखना, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना, स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल, स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल, ये चीज है ना, क्योंकि कंपटीशन में हर चीज को देखा जाता है, so you have to be specific. Clear? So this is the structure of what? Chloroplast. Clear? Any doubt to anyone? No, sir. आगे चलें। ये Yes, जो sir. आप ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? What do we say this tubular structure? आप बोलोगे स्ट्रोमा लैमली। What do we say? We say stroma lamella, ठीक है, which connect one granum to the another granum। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से ये अटैच करने का काम करता है। राइबोसोम कौन सा होता है यहाँ पे? अब डायग्राम में देखो, which kind of ribosomes are there? The 70S. Yes, 70S राइबोसोम। You have to be specific। यानी क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का अपना राइबोसोम है। इट मींस ये क्या करेगा? अपना प्रोटीन खुद बनाएगा। इट मेक इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है, ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है ना, और खुद से रेप्लिकेट कर लेता है, खुद से रेप्लिकेट कर लेता है। इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, है ना। दैट इज व्हाई द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और कौन सा होता है आप बताओ? दूसरा और कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? Mitochondria. यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। बात समझ में आई? Yes, sir. So this is about the chloroplast. So in this way we have completed the 3 types of plastics, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? मेनली क्लोरोप्लास्ट का काम आप देखोगे, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर क्रोमोप्लास्ट की बात करोगे तो क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड कलरफुल, ठीक है, इट प्रोवाइड कलर वेरियस कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट,
and thus it attract the insect for pollination. ठीक है, ये चीज याद रखना. Chromoplast provide characteristic color, attractive color to the plant parts to attract the insect for the purpose of pollination. ठीक है. And leucoplast का काम क्या हुआ? What is the function of the leucoplast? Storage of the different kind of food. ठीक है ना. तो ये आपने देखा कि अलग अलग तरीके के प्लास्टिड्स है और उनका अलग अलग काम है. ठीक है ना. अब खास बात क्या होती है? These can be converted into each other. अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. पहले आप एक स्टेटमेंट मेरा सुन लेना और अच्छे से समझ लेना. ठीक है. मैंने कहा ना कि अभी प्लास्टिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट. है ना. तो ये आप देखोगे ये क्या है? आप देखोगे कि ये डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं. है ना. ये इंपॉर्टेंट है. तो नेचर में हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं. आप देखते हो पीपल का पत्ता जब नया नया होता है, नाजुक होता है, तो कैसा होता है? ब्राउन होता है या रेड होता है. द मैंगो लीव्स इनिशियली इट इज रेड और ब्राउन, बट ऑन मैच्योरिटी इट इज कन्वर्टेड टू ग्रीन. ऐसा क्यों हो गया? हरी मिर्च कैसी होती है? बोलिए. ये होती है कच्ची मिर्च, अनराइपेंड चिली, वो हरी है. ठीक है. क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है. ठीक है. पकने पे लाल हो जाती है. कच्चा टमाटर हरा होता है, पकने पे लाल हो जाता है ना. मैंगो का पील आप देखोगे, छिलका हरा होता है, कच्चे पे, पकने पे येलो हो जाता है. तो ये कन्वर्जन हम लोग देखते हैं ना. दीज आर द कन्वर्जन्स व्हिच वी ऑब्जर्व इन द नेचर. So it means that the plastids can be converted into each other. ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो you have to solve it. ठीक है. Unripened mango peel is green but on ripening it is converted into yellow. Why? क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एक लाइन का आंसर है its chloroplast is converted into chromoplast. That is why it turns yellow. केले का छिलका हरा होता है, पकने के बाद पीला हो जाता है. इसका मतलब क्या है? ये आप देखोगे कन्वर्ट हो गया. इट इज कन्वर्टेड. ठीक है. सो प्लास्टिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. ठीक है ना. यस सर. आगे चलें. यस सर. आगे क्या बचा अब हम लोगों का? अब हम लोगों का बचा है साइटोस्केलेटन. सीलिया, फ्लैजेला बचा है, सेंट्रोसोम बचा है, सेंट्रियोल बचा है. ठीक है. न्यूक्लियस बचा हुआ है. तो लेट मी स्टार्ट न्यूक्लियस फर्स्ट. ठीक है. पेज नंबर 138 पे आ जाओ. ठीक है. लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस. व्हाट इज द टाइम? कितना बचा है अभी? 15 मिनट, 15-17 मिनट. ठीक है. तब तक हम न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे. हम लोग आराम से पढ़ेंगे. ये डायग्राम बना लिया था कि नहीं? यस सर. ये डायग्राम बनाया. यू टेक द स्क्रीनशॉट. बना लिए थे सर. ठीक है. Roshni Rai is there in the class or not? Roshni, are you there? Ritika? You are present? Yes, sir. Guntas? Yes, sir. Okay, today you are present. Good, very good. The nucleus is very important. Cell organelle. ठीक है. It is the control center of the cell. If cell is a factory, then nucleus is an expert engineer. They can say, because nucleus control what? The various activities of the cell. ठीक है. यानी nucleus यहाँ से. Who discovered nucleus? Who discovered nucleus and when? बोलिए. The nucleus was discovered by
रॉबर्ट Sir, ब्राउन Robert इन द Brown. ईयर 1831, ठीक है ना? ये याद रखना, 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? अब देखो क्या है, the presence of nucleus is the characteristic feature of all the eukaryotic cells, ठीक है, with some exception where we do not see the nucleus in the eukaryotes, जैसे RBC, human RBC या mammalian RBC does not contain nucleus। ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है बेटा। देखो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोट, ठीक है, बट यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल except the mammalian RBC, ठीक है। द मैच्योर mammalian RBC does not contain nucleus। आप लिख लो इसको, ठीक है, you have to write, ठीक है, मैच्योर mammalian RBC, mammalian RBC यानी एरिथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है, do not contain nucleus। इसमें भी क्या है, एक्सेप्ट कैमल में होता है। कैमल इज अ मैमल, ठीक है, वेयर द आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस, अदरवाइज हम लोगों में नहीं होता, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। और फ्लेमिंग ने बताया कि व्हेन वी स्टेन द सेल इट इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई, ठीक है, ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, इट टेक्स द बेसिक डाई, ठीक है, इट ऑलवेज टेक्स द बेसिक डाई, ठीक है। कौन, न्यूक्लियस। ये भी चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, क्लियर। तो presence of nucleus is a characteristic feature of all the eukaryotic cells। In prokaryotic cell, a well-defined nucleus is always absent। The shape of the nucleus depends on the shape of cell। इसको याद रखना, ठीक है ना। The shape of the nucleus depends on the shape of cell। It may be oval, it may be spherical हो सकता है, it may be elongated sometime, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। पोजीशन कहाँ है न्यूक्लियस की, वेयर इज द पोजीशन, कौन बताएगा। In animal cell, this is mostly found in the center of the cell, but in case of plant cell, it is generally pushed towards one corner। Reason मैंने बताया था, because of the presence of large central vacuole, है ना बेटा, याद रखना इसको, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की, तो एनिमल सेल में तो फिक्स है, वो जनरली in the center, but in case of plant cell it is generally at one corner, ठीक है, due to the presence of large central vacuole, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेप्शन में कि नेम द प्लांट सेल वेयर न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर, तो व्हाट शुड बी द आंसर, बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं, मैंने पूछा कि नेम द प्लांट सेल, I am talking about the plant cell। Name the plant cell where nucleus is found in the center of the cell। बोलिए, आप एक ऐसा प्लांट सेल का नाम बताइए जहां पे न्यूक्लियस सेंटर में होता है। बोलो रितिका, कैन यू गेस।
तो कहीं पे भी नहीं होता है प्लांट सेल में सेंटर में। नहीं बेटा, थोड़ा सा आंख बंद करके जरा सा दिमाग पे जोर डालो। मैंने बताया था ना मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे डोंट हैव वैक्यूल। वैक्यूल पढ़ाते समय मैंने बताया था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स, ठीक है, दे आर डेंसली पैक्ड विद द साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव वैक्यूल, सो देयर न्यूक्लियस इज इन द सेंटर। याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों को आप नोट करके रखना। मेरिस्टेमेटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, but in all other plant cells this is generally found one corner because of the presence of large central vacuole। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। अब आगे देखो, ये तो पोजीशन की बात हमने कर ली। अब नंबर, एक सेल में कितना नंबर होता है न्यूक्लियस का? नंबर जनरली वन, ठीक है, वन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बट किसी में दो होता है? आप बताओ। टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। द प्लूरल ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियाई, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दो न्यूक्लियस किसमें होता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। पैरामीशियम में देखोगे तो इस तरह से आप देखोगे, ये पैरामीशियम हो गया। बना लो ऐसे ही रफ डायग्राम, बहुत खूबसूरत है, ऐसे रफ डायग्राम आप बना लो। सो देयर आर टू न्यूक्लियाई, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और मल्टीपल न्यूक्लियस किसमें होते हैं? मैनी न्यूक्लियाई। आप बता सकते हो? दो सेल होती है, एक होती है सिनोसिटिक सेल, सिनोसिटिक, और एक होती है सिंसेशियम, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल उसको बोलते हैं सिंसेशियम, और मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगल सेल एंड प्लांट सेल को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में फंजाई या फंगल हाइफा लिख दो। हाँ, ऐसे लिख दो, फंगल हाइफा, ठीक है। और दूसरा होता है एंडोस्पर्म ऑफ प्लांट सेल, एंडोस्पर्म ऑफ प्लांट, बस सिर्फ एंडोस्पर्म लिख लो, एंडोस्पर्म, ठीक है। जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं ना, वो हम लोग एंडोस्पर्म पीते हैं, ठीक है, याद रखना। और नारियल पानी का एक ड्रॉप आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे स्लाइड पे रख के, तो आपको केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस नजर आएंगे, ठीक है। और सिंसेशियम मतलब एनिमल सेल में आप बेस्ट एग्जांपल आप क्लास 9th में पढ़े होगे, स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रिएटेड मसल सेल जो आप ऐसे बनाते हो ना, याद आएगा क्लास 9th का आपको। ये स्ट्रिएटेड मसल सेल है, इसमें स्ट्रिएशंस ऐसे खूब सारे लाइट एंड डार्क बैंड्स, यहाँ पे आप देखोगे इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो this example you have to learn. Normally the cell contain only one nucleus, but in paramecium there are two nuclei.
ठीक है, इन स्टेटेड मसल्स देयर आर न्यूमरस न्यूक्लियाई, इन फंगल हाइफी एंड एंडोस्पर्म अगेन मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, देखो सिनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल इज टर्म्ड एज सिनोसिटिक, ठीक है, वेयर एज मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, सिंथेशियम। क्लियर, दिस इज टर्म्ड एज सिंथेशियम। क्लियर, यस ये सर। चीज क्लियर है? आगे चले, तो ये तो मैंने आपको जनरल चीज मैंने बताया, ठीक है ना, ये मैंने जनरल चीज बताया आपको। ठीक, अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्ट्रक्चर देखोगे, when you see the structure of nucleus under electron microscope, you will get the idea that the nucleus is made up of double membrane, ठीक है, and numerous pores are there, बीच बीच में आप देखोगे इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये न्यूक्लियस हुआ। ठीक, कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन। यहां पे लिखोगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, this one is the inner membrane, clear, and a gap you can see between these two, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, गैप है, and that gap is called as the perinuclear space, this is called as perinuclear space। ठीक है, और जगह जगह देखो, आप देख रहे हो न्यूक्लियर पोर जगह जगह इसमें छेद होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना, तो दिस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ क्या है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यानी दिस इज द सेल और ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई चीज अंदर आएगी इसी से, किसी चीज को बाहर जाना होगी तो यहीं से जाएगी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना, न्यूक्लियर पोर। इसके बाद यहाँ पे देखोगे वन और टू और समटाइम मैनी डार्क पैचेस आर देयर, ठीक है, एंड दिस डार्क पैच इज नथिंग बट दिस इज द न्यूक्लियोलस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोलस। What is the function of nucleolus? It helps in the RNA synthesis, RNA and protein synthesis, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस। इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियोली, प्लूरल क्या है, न्यूक्लियोली, देयर में भी वन और मोर देन वन न्यूक्लियोली, ठीक है ना, इन अ न्यूक्लियस। और यहाँ पे द जेली लाइक लिक्विड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड, यहाँ पे जो आप देखते हो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन आप नोट कर लो कहीं पे, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ठीक है ना, एंड आरएनए, ठीक है, इट हेल्प इन द आरएनए एंड द राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम में हेल्प करता है ये कौन, न्यूक्लियोली,
ठीक है, न्यूक्लियोली हेल्प इन या न्यूक्लियोलस हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। आरएनए एंड राइबोसोम याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो जेली लाइक लिक्विड है उसमें खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। दैट एंजाइम्स हेल्प इन द synthesis of DNA, help in the synthesis of RNA and some other substances. Variety of activities takes place in the nucleoplasm because of the presence of various enzymes. और ये एंजाइम जनरली न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे। ठीक है ना, so they help in the synthesis of what? They help in the synthesis of DNA. They help in the synthesis of RNA. Clear? और यहाँ पे आप देखोगे खूब सारे स्ट्रक्चर्स हैं like this, thread like structures, उलझे हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। These are called as a chromatin fiber. Chromatin, ठीक है, फाइबर। है ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी 7:31 हो रहा है टाइमिंग, एंड दिस इज द टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास, है ना।